Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Friendship. In today's video, we'll start with chapter number 8 of Onthrojan 1 class 9. It is Fair Dezashat means to do shopping. तो ये हमारा बहुत छोटा चैप्टर ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, बस एक कंडीशनल हमारी वर्ब आएगी, उस पर आप लोगों को थोड़ा सा जो है फोकस करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर से, क्या क्या इसके अंदर हमारे कंसेप्ट है सबको हम क्लियर करेंगे। बेसिकली डायलॉग्स इसके अंदर ज़्यादा है, ग्रामर कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कम है। स्टार्टिंग में हमने देखे थे इस बुक के अंदर कंसेप्ट्स ग्रामर के थोड़े थोड़े, आगे चलते चलते तो हमारे छोटे होते जाते हैं कंसेप्ट, क्योंकि हमने अभी तक जो हमने नाइन्थ से पहले पहले ये, क्योंकि नाइन्थ की बुक है, नाइन्थ से पहले पहले जो कि हमने करा था उसके अंदर हमारे ऑलमोस्ट अब के लेवल के जो पार्ट हैं वो कवर हो चुके हैं, राइट। अब इसमें इतना खास करने लायक नहीं है, तो इसलिए ये बुक भी थोड़ी सी हमारा फॉर्मेट भी चेंज हो चुका है एंड आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, क्योंकि पहले आप थोड़ा पिक्चर वाइज देखते थे, इजी लैंग्वेज देखते थे, बट यहाँ पर आप लोगों का एकदम जो है लेवल इंक्रीज हो चुका है। तो डरना नहीं है इस बुक से बिल्कुल भी, जैसा होगा हम उसको करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। Akanksha e Nargis vão ao centro comercial por acheter a cadeau a Pauline. Means Akanksha and Nargis are going to commercial center for buying a gift for Pauline. Akanksha, qu'est-ce qu'on peut acheter pour Pauline? What means what we can buy for Pauline? Je n'ai pas d'idée means I don't have any idea. Nargis कहती है pourquoi pas lui acheter un CD? CD means why don't we get her a CD? उसके लिए CD क्यों नहीं खरीद लेते? Elle adore la musique means she loves the music. आकांक्षा कहती है oui c'est une bonne idée means yes this is a good idea. Je vais lui acheter le nouveau CD Jazz. Mean nouvelle CD Jazz means yes that's a good idea. I will buy for her. I'm going to buy for her a new CD of jazz. Et toi, qu'est-ce que tu vas lui offrir? And you, what you are going to offer her? Nargis कहती है des boucles d'oreilles means earrings. Du vernis à ongles means nail paint. Ou peut-être un roman, or maybe a roman means a novel. On va voir means we are going to see. Nargis et Akanksha vont vers le rayon de bijoux means Nargis and Akanksha goes towards the jewelry section. Elles choisissent des boucles d'oreilles means they choose the sum of the earrings. Nargis, excusez-moi madame, ces boucles combien coûtent-elles means these earrings, how much they cost? These euro mademoiselle means 10 euros Mrs. Vous les avez d'une autre couleur means you have them in another color. एम्प्लॉय जो हमारे होते हैं वो कहती है या कहता है il y a trois couleurs means there are three colors. bleu, rouge et jaune means blue, red and yellow. नार्गिस कहती है je prends le rouge means I am going to take the red. C'est pour offrir means it is to offer. Est-ce que vous pouvez faire un paquet cadeau s'il vous plaît means it's for offering, मतलब किसी को देना है, हमें ऑफर करना है. So can you do packing, मतलब पैक कर सकते हो इस गिफ्ट को s'il vous plaît प्लीज़. फिर एम्प्लॉय कहता है वी मॉडमेजल मीन्स यस मिसेस. इसको vous acceptez les cartes de crédit मीन्स डू यू एक्सेप्ट द क्रेडिट कार्ड्स. एम्प्लॉय कहता है वी bien sûr मीन्स यस ऑफ कोर्स. मेसी बोकू, मार्गिस कहती है मेसी बोकू. से जॉन्टे मीन्स थैंक यू सो मच, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखे हैं, 5 टिक्स करने दे रखे हैं, वो आप लोग को खुद करना है. अब हम आते हैं यहाँ पर. इट सेज j'apprends à exprimer la politesse मीन्स आई लर्न टू एक्सप्रेस द पोलाइटनेस. Nous aimerons voir des stylos de bonne qualité. Nous aimerons voir des stylos de bonne qualité means we would like to see pens of good quality. Je voudrais acheter quelques dossiers en plastique means I would like to buy some plastic files. ठीक है, जो आप लोगों ने देखा क्यों प्लास्टिक की होती है उसके अंदर स्टिक डलती है, तो वो वाली फाइल्स की वो बात कर रही है. अब यहाँ पर जो हमने ये वुड लाइक, ये वुड हमने देखा वुड लाइक, अगर हमारी कोई सी वर्ब होती तो उसके आगे वुड जुड़ जाता, तो ये हमारा कौन सा टेंस होता है, इट इज़ द कंडीशनल कंडीशनल टेंस. ठीक है, अब हम इसको क्या देखते हैं कि कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, इन द कंडीशनल फॉर्मेशन कैसी होती है. सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम एम ए वर्ब का. एम ए मीन्स टू लाइक. अब मेरे को अगर इसका कंडीशनल वर्ब फॉर्म करना है वुड लगाने वाला, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ई आर को कट करेंगे एंड हमारी एंडिंग्स क्या पुट होती जाएंगी, सॉरी ई आर
आपको कुछ करना नहीं होगा हमारा इसके अंदर, हमारी सिर्फ एंडिंग्स, ई आर के पीछे एंडिंग्स लगती जाएंगी, ए आई एस, ए आई एस, ए आई टी, आई ओ एन एस, आई ई जेड, आई ई एन टी, आई ई एन टी, ए आई एस, ए आई एस, ए आई टी, ए आई टी, आई ओ एन एस, आई ई जेड, आई ई एन टी, आई ए एन टी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होंगी, एंडिंग्स लगती जाएंगी। एंड हमारा कोई भी कुछ भी चीज़ कट नहीं होगी, एम ए में से ई आर वगैरह कुछ भी, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं यहाँ पर वुलवार वर्ब के अंदर। अब देखो, वो जो हमारा कंडीशनल होता है ना, इट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर। फ्यूचर में जो हमारी कॉन्जुकेशन होती है उसका, ये ए आई से पहले वाली टर्म जो होती है उसको हम हमारा यूज़ करते हैं। जैसे कि वुलवार में हम आई आर के पीछे ए आई एस, ए आई टी, ए आई एस, ए आई एस, ए आई टी ऐसे ऐड नहीं करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा फ्यूचर टेंस होता है, जैसे कि वुलवार का हमारा फ्यूचर क्या होता है, यवुद्रे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जो हमारा वुद्र है ना, वी ओ यू टी आर, तो उसके पीछे ए आई एस, ए आई एस, ए आई टी, आई ओ एन एस, आई जी ई जेड, आई ई एन टी, आई एन टी ऐसे हमारा ऐड होगा। तो आप लोगों को कंडीशनल टेंस बनाने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, फ्यूचर टेंस की नीड होती है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम यहाँ पर, j'apprends à faire des courses means I learn to do shopping. Pauline organise une soirée et elle fait des achats. But before doing this, एक बार हम ये वाला जो है ये हमने स्किप कर दिया था, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ कोश la bonne réponse means टिक द करेक्ट आंसर। आकांक्षा ए नॉर्मी सो means आकांक्षा and नॉर्मी आर au grand magasin, au centre commercial, au marché. The correct answer is au centre commercial. Elles y sont pour acheter un cadeau pour la fête des mères, acheter un cadeau d'anniversaire pour une amie, s'amuser. So it's gonna be B part means to buy a gift for one of her friend, for a birthday party of a friend. Nargis achète means Nargis buys. Ainsi des the boucle d'oreille rouge, the boucle d'oreille multicolor. So the correct answer is B part. The boucle d'oreille rouge means red color की earrings उसने खरीदी. So correct answer is B. Fourth part, Nargis paye par sa carte de credit, par chèque ou espèce. Means Nargis कैसे पे करती है, by credit card, by check और by cash. So the correct answer is A part, par sa carte de credit. दी vrai ou faux means c'est true or false. Pauline adore la musique, so it's gonna be true, क्योंकि यहाँ पर हमने एक लाइन देखी थी, नारगिस क्या बताती है, एल अडोर ला म्यूजिक, और किसके लिए वो गिफ्ट लेकर जाए, पोलिन के लिए। तो यहाँ पर एल किसके लिए रेफर कर रहा है, पोलिन के लिए ही। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, व्रे, राइट। हेयर बी पार्ट कहते हैं नारगिस आशित और रोमेंस। सो दिस इज गोना बी रॉन्ग, क्योंकि हमने देखा था कि नारगिस ने क्या सिलेक्ट करा था, शी सिलेक्टेड द रेड कलर ईयर रिंग। तो दिस इज गोना बी द फॉल्स स्टेटमेंट। आप लोग इसको फॉल्स करके इसके आगे जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है उसको भी नोट डाउन कर सकते हो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो टेक्स्ट के अंदर सब कुछ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है आप लोगों को, तो इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है। बट अगर करना चाहो राइट करेक्ट स्टेटमेंट को रिटर्न फॉर्म में, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। फिर सी पार्ट क्या कहता है, नारगिस फे फेयर paquet cadeau pour Pauline means Nargis is going to make a packed gift for Pauline. So this is going to be correct, क्योंकि लास्ट में हमने देखा था हमने देखा था she asked for the packed gifts, मतलब वो पैकिंग कराना चाहती। सो दिस इज गोना बी द ट्रू सेंटेंस, ठीक है। अब ये इसके बाद ये वाला कर लिया, हम आए थे यहाँ पर, वेयर वी हैव रेड फ्रॉम दिस, क्या कहते हैं, पॉलिन शी इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी। अभी हमने टेक्स्ट के अंदर देखा कि उसका बर्थडे है, तो सुआरे क्या होता है, इवनिंग पार्टी। सो शी इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इवनिंग पार्टी एंड शी इज़ डूइंग शॉपिंग, मतलब पार्टी के लिए तो शॉपिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए वो क्या कर रही है, शॉपिंग करने जा रही है। सबसे पहली चीज़ गोज़ टू अ क्रेमरी। क्रेमरी इज़ जहाँ पर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो वो वाली शॉप को हम क्रेमरी बोलते हैं। बेसिकली इसके ऊपर हमारा ये वाला एक्सेंट लगता है। यहाँ पर एक्सेंट्स की ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो जहाँ पर भी लगना होगा मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। बुक में इटसेल्फ यू कैन पुट डाउन ऑल द एक्सेंट जो आपको बताऊँगी। तो क्रेमरी जो हमारी शॉप है उसके अंदर पॉलिन जाकर कहती है बोंजूर मैडम मीन्स हेलो और गुड मॉर्निंग मैम। सो आप लोगों में से कई बच्चे क्या होते होंगे, बोंजूर के अंदर
कंफ्यूज होते होंगे। तो बोंजूर का मतलब हेलो भी होता है एंड इसका मीन गुड मॉर्निंग भी होता है। तो कुछ कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। हेलो हम जब भी यूज़ करेंगे जब हम फॉर्मली हेलो बोल रहे हैं। वैसे कैजुअली हम अपने फ्रेंड्स को अगर हेलो बोलते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं, सैल्यू का। एंड देयर अगेन एक वोकैबलरी इंक्रीज़ करवाती हूँ आप लोगों की। हम बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हैं अगर किसी बंदे के साथ, बंदे से मेरा मतलब वो बंदा नहीं है, आई मीन किसी फ्रेंड के साथ, तो हम क्या लिख सकते हैं, कुकू। कुकू का मीनिंग भी क्या होता है, हेलो। बट ये बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाता है, मतलब सैल्यू से भी नीचे वाला लेवल इसका पहुंच जाता है। तो कुकू सैल्यू बोंजूर में बहुत ज़्यादा जो होता है डिफरेंस होता है। बोंजूर फॉर्मली के लिए, सैल्यू थोड़ा सा इनफॉर्मल, एंड कुकू इससे भी ज़्यादा इनफॉर्मल। एंड बोंजूर का मतलब क्या होता है, गुड मॉर्निंग भी होता है। तो बोंजूर मैडम, je voudrais des œufs et de la crème s'il vous plaît means I would like some eggs and some cream please। फिर जो मार्शांद होती है, जो हमारी हु इज़ वर्किंग इन द क्रेमरी, मर्चेंट होती है, वो क्या कहती है, वुएला मीन्स देयर इज़, इट्स इनफ। वुद्रिए वो ऑथर शोज मीन्स वुड यू लाइक अनदर थिंग्स। पोलिन कहती है आ वी अ लीटर de la aussi मीन्स अ येस अ लीटर, 1 लीटर ऑफ मिल्क ऑल्सो। फिर यहाँ पर हो गया क्रेमरी का सीन। अब आते हैं यहाँ पर मार्शे वाले सीन पर, मीन्स इन द मार्केट। मार्केट में जाती है पोलिन और वो कहती है बोंजूर मोंसियर मीन्स हेलो सर। वेंडर जो हमारा होता है वो कहता है बोंजूर मदेमोइसेल vous désirez मीन्स हेलो मैम, मिसेस। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू डिज़ायर। पोलिन कहती है je voudrais 2 citrons मीन्स आई वुड लाइक 2 lemons। 1 किलो दुआइनो मीन्स 1 किलो ऑफ अनियन। 1 किलो de tomate मीन्स 1 किलो ऑफ टमाटोज। 2 रूश मीन्स होल रेड, मतलब लाल रंग के उसको टमाटर चाहिए। ए 500 ग्राम द शैम्पिनो सिल vous plaît एंड 500 ग्राम्स ऑफ मशरूम्स प्लीज़। वेंडर जो हमारा कहता है वो कहता है वोला मादेमोइसेल मीन्स देयर इज मिसेस। पोलिन कहती है जेमरे ओसी द पोम द terre मीन्स आई वुड ऑल्सो लाइक टू हैव द पटेटोज। वेंडर कहता है वी वो वूले कॉम्बिया मीन्स हाउ मच यू वॉन्ट। फिर पॉलिन कहती है जो प्रो किलो मीन्स आई टेक अ किलो। ले वाला मीन्स देयर इज। पॉलिन कहती है मेंसी मोन्शियर, और revoir मीन्स थैंक यू सर, और revoir मीन्स बाय बाय और गुड बाय, ठीक है। फिर आता है एपिसरी। एपिसरी इज़ ऑल्सो शॉप जहाँ पर आपको स्पाइसेस वगैरह मिलते हैं, ठीक है, घर का छोटा मोटा चीज़ें मिलती हैं। तो एपीसीए मीन्स जो एपिसरी शॉप को टेक ओवर करता है, जो उसका वेंडर होता है, वो कहता है बोंजूर मादेमोइसेल vous désirez मीन्स व्हाट यू डिज़ायर। पोलिन कहती है 1 किलो द फारिन। फारिन क्या होता है, प्लेन फ्लावर, ठीक है। तो 1 किलो ऑफ प्लेन फ्लावर। एपीसीए हमारा कहता है से pour faire de la pâtisserie मीन्स इट्स टू मेक द पेस्ट्रीज। पोलिन कहती है नो दे क्रैप c'est tout मीन्स इट्स इनफ, इट्स होल। नो je voudrais aussi une bouteille d'eau minérale। नो आई ऑल्सो वॉन्ट अ बॉटल ऑफ मिनरल वाटर। फिर ये हमारा हो गया। फिर वो आती है बुलॉन्जरी में मीन्स बेकरी में। जो हमारा बेकर होता है वो कहता है बोंजूर मादेमोइसेल मीन्स हेलो मिसेस, une baguette bien cuite comme d'habitude means a well baked bread। लाइक यूजुअली मतलब यहाँ से हमारा क्या प्रूव होता है कि पॉलिन एक रेगुलर कस्टमर है उस बेकर की। एंड वो कहता है यूजुअली रोज़ की तरह, आमरा की तरह, जैसे कि आप लेकर जाते हो वो एक ब्रेड चाहिए आपको वेल कुक्ड। तो इससे क्या प्रूव होता है कि पॉलिन इज़ अ रेगुलर कस्टमर ऑफ दैट बेकर। तो पॉलिन कहती है वी je voudrais aussi 4 croissants pour les enfants मीन्स आई ऑल्सो वॉन्ट 4 क्रोआसो। क्रोआसो क्या होते हैं, हमारे ब्रेड होते हैं, जैसे कि आप ये क्रोआसेंट शेप देख सकते हो, ऐसे टाइप के ब्रेड को हम क्रोआसो बोलते हैं। फॉर द चिल्ड्रन je vous dois combien मीन्स अब मेरे को आपको कितना पे करना है, €20 pour la baguette et 4,5 €। Au total ça fait 7,20 मीन्स 7 € एंड 20, जैसे कि हमारा पैसे में चला जाता है यूनिट रुपीज़ के बाद, तो वैसे ही यहाँ पर हमारा यूरोज़ के बाद की यूनिट चली गई है, मतलब थोड़ा सा नीचे आ गई है। पैसेज वाली जो लाइन होती है ना, वैसे इंडियन वाले में कंपेयर करूँ तो वो होता है पैसे, इसमें हमारा कुछ और होता है, ठीक है। देयर इज़ सम अनदर टर्म फॉर दैट।
अब आते हैं à la boucherie मीन्स इन द बचर शॉप। पोलिंग कहती है bonjour monsieur मीन्स hello mister, je voudrais un poulet de kilo means I want a chicken of 2 kilos. Le voilà, vous désirez autre chose means there is, you want another things. Oui, 4 tranches de jambon blanc means yes, 4 slices of white ham. जम्बो का क्या मीनिंग होता है? हैम, HAM, ठीक है, तो ये हमारा होता है जम्बो, राइट। नाउ वी हैव डिस्कस दिस। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीट द ग्रिल्स जो नीचे दे रखी हैं इन अकॉर्डिंग टू द डायलॉग्स विच आर प्रिसीडिंग। जैसे कि यहाँ पर हमारा बुशरी मीन्स बचर शॉप के नीचे क्या लिख रखा है, त्यूपुले। तो वैसे ही आपको कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट आउट करने हैं जो आपको बचर शॉप में मिल जाएंगे, बुलॉन्जरी के अंदर जो मिल जाएंगे, क्रैमरी के अंदर मिल जाएंगे। तो ये आपको क्या करने हैं, खुद लिस्ट आउट करने हैं, राइट। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या एक ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ दे रखी है, कैसे हमने जो हमारा ओ होता है ड्यू को कैसे हमारा ओ ने रिप्लेस कर दिया। तो सिंपल सा एक कंसेप्ट है, एक बार इन सेंटेंसेस को जस्ट रीड आउट करना है। कैसे हमारा ड्यू जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो कन्वर्जन करेंगे तो वो ओ हमारी प्लेस ले लेता है द वाले फॉर्म्स की। अब द के अंदर सारे आ जाते हैं, ड्यू भी आ जाता है, दला भी आ जाता है, दे भी आ जाता है, द एल अपोस्ट्रोफ भी आ जाता है, सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो उनकी प्लेस क्या ले लेता है, ओ ने लेता है। अब ये वाले सेंटेंसेस को जो है आप लोग रीड आउट कर लेना। अब आते हैं यहाँ पर, j'apprends à exprimer la quantité means I learn to express the quantity। अब दिस इज़ गोना बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इसके बाद तो हमारी एक्सरसाइज ही दे रखी हैं, राइट। एंड उसके बाद चैप्टर नंबर 9 ही शुरू हो जाता है। एंड यहाँ पर एक ही वाला छोटा सा टॉपिक है। तो आते हैं सबसे पहले यहाँ पर, सिंपल से डायलॉग्स हैं मीन्स आई लर्न टू एक्सप्रेस दी क्वान्टिटी। यहाँ पर देखो, लगातो नेपा बो मीन्स द केक इज़ नॉट गुड, इलेक्ट्रो सेक मीन्स इट इज़ अ वेरी dry. Désolé monsieur, voulez-vous un peu de crème caramel pour l'accompagner? Means sorry mister, do you want a little bit of caramel cream for accompanying this cake? फिर ये यहाँ पर दिस इज़ अ मिस्टर हु स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। तो ये कहता है इलिया थ्रू द सर्कुलेशन पोंडो लेजर द पॉइंट मीन्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ड्यूरिंग द पॉइंट पीक आवर्स। पीक आवर्स क्या होते हैं, जब आपको किसी हरी में होते हो आप लोग, कोई काम होता है तो उसको हम पीक आवर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पर विच इज़ compter means when we cannot count। जैसे कि ड्यू काफ़ी मीन्स सम कॉफ़ी। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें काम काउंट नहीं कर सकते, हमें क्वांटिटी नहीं पता होती, तो हम इन प्रपोजिशंस का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब हम काउंट कर सकते हैं तब हम प्रपोजिशंस के लिए मैंने यहाँ पर दिस इज़ एडजेक्टिव। तो जहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं वहाँ पर हम द थ्रू आई ये यूज़ करते हैं, बोकू द केलका, तो यहाँ पर हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू ऑल। एंड एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व करने की ट्राई करनी है। अगर नहीं हो पाती so ask me in the comments, I will make a video on that also. So this is all for this video. We'll meet in the next video by starting another chapter number 9. And yes, exercise try करना, and नहीं हो पाती तो ask me in the comments. I'll provide you with another video on the exercise of this chapter. Till then, take care and bye bye, and keep studying and keep learning.